Hello students, we are here for you to present oral pathology lectures. It will help you to pass third year BDS as well as final year BDS also. It's a basic subject in which you will have to gain the knowledge of clinical approach also, because in day-to-day life all the lesions disorders in the patient's mouth you have to check and go for proper diagnosis as well as its management. So today's lecture is about herpes simplex virus. They might ask you in 7 marks question, describe herpes simplex virus, its types and its clinical outcomes or its treatment. Okay, so it's a common disease in the oral cavity. So they may ask you, but we should not go into deep. You just go with the superficial part, and you can write notes which you can write in your exams. Content you have to write only that much that you can present in your exam. So we will not waste your time. We'll start today's lecture. It is about herpes simplex virus. Okay, there are two types, one and two. Now, which are the most common sites that this herpes simplex virus affects? Skin, eye, oral cavity, general tract. We'll be discussing about oral cavity. Okay, sometimes they will be having only mild and self-limiting effect, because in healthy patient our immunity will be fine, so they will not present more symptoms. Severity will be less. But in case of immunocompromised and newborn, they may be very dangerous, life-threatening condition. Okay. Now we already discussed what is this immunocompromised. In the previous lectures, we have asked you to predisposing factors. Let me change the color. Some reflection is coming. Okay, predisposing factors. Which were they? HIV, cancer, congenital diseases, some immunocompromised diseases, autoimmune disorders, malnutrition. All these are predisposing factors for certain things to be active or show their certain active symptoms. Okay, when we discussed candidiasis, we have told you that this will not happen in a patient with good immunity. This will not happen in a patient with proper oral hygiene. But if the patient is having immunity disorders, all the predisposing factors, then this will be having its severity will be more symptoms will be there, and patient will have affection of candidiasis. Okay, same way, and we have explained you that during the World War, patient will not have time to clean the oral cavity. There will be very lack of poor oral hygiene. Nutrition will be less, stress will be more. So this will be there in patient's mouth, and as well as candidiasis. So these are called opportunistic infections. जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि herpes simplex वायरस भी कुछ ऐसा ही डिसीज है, अगर इम्यूनिटी कम होती है तो वो एक्टिव हो जाता है, सिवियरिटी ज्यादा होगी। अब प्राइमरी इन्फेक्शन, तो when the herpes simplex virus gets infected in the body or gets action in the body for the first time, gets entry in the body for the first time, at this time body will not have history of immunity, और ये बोलना चाहते हैं कि बॉडी के अंदर उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होगा। तब जाके फर्स्ट टाइम होगा ना, इट विल बी वेरी सीवियर,
patient will have very severe symptoms because it is for the first time. ओके, फर्स्ट टाइम होने के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हो जाएगी, बाद में कोई भी एंटीजन आता है herpes का, उसको बॉडी निकाल देगा बिकॉज बॉडी इज ऑलरेडी ट्रेन्ड टू रिमूव herpes by its antibodies. ओके, नाउ एक बार इन्फेक्शन हो गया और दूसरी बार होता है, उसको बोलते हैं नॉन प्राइमरी फर्स्ट इन्फेक्शन. ओके, तो एक प्रीवियस इन्फेक्शन होने के बाद ही होता है, उसके बीच में इम्यूनिटी बन जाती है और वो लेस सीवियर होता है. ठीक है, नाउ देयर आर चांसेस दैट देयर माइट बी रिकरेंट इन्फेक्शन. ओके, ड्यू टू लेस सीवियर if you are not gone proper dosage of this treatment plan, or patient is so less immune that it will present its symptoms again. When there is recurrent infection, there will be shorter duration. We don't know many times that this is the disorder. No physical distress, and they are contagious. They will spread rapidly. Okay. Now, etiology of herpes simplex virus. Obviously, we know that they are due to virus only, but they have genetic composition. Okay. So, in both the viruses, we have differences their glycoprotein genes. Okay. And we to differentiate this, specific serologic test is used to differentiate between HSV1 and 2. ठीक है, तो इटियोलॉजी में कुछ नहीं, कंजेनेटल है या जेनेटिक है, इडियोपैथिक भी आप लिख सकते हो, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन भी लिख सकते हो. ठीक है, वो आपकी इटियोलॉजी है. अब आया एपिडेमियोलॉजी. तो एपिडेमियोलॉजी क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? वायरस का एकमात्र होस्ट ह्यूमन्स है. इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स. ठीक है, नाउ ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द म्यूकोकॉन्टिक्यूटेनियस सरफेसेस. जब कोरोना आया था ना, तब आपको पता होगा कि एरोसोल है वो कनेक्ट हो जाते म्यूकोजा पर, स्किन पर, तब जाके वो स्प्रेड होता है. तो वायरस कैसे स्प्रेड होता है? म्यूकोक्यूटेनियस. ठीक है, नाउ ऑल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स. ठीक है, जो भी पेशेंट वायरस से इन्फेक्टेड है वो आर्बर करेगा. क्या आर्बर करेगा? वायरस को एक घर दे देगा रहने के लिए. एक बार इन्फेक्शन हो गया ना, तो वो चुपके से कहीं बैठेंगे. नाउ व्हेन टाइम्स कम, when there is an predisposing factor or immunocompromised individual or lack of nutrition, at this time they will be again infecting the patient. Okay, so due to this, many times patient don't know what is happening. Okay, they feel that they are having fever, they go to doctor will tell that it is viral fever, they will give medication, it will be okay. So sometimes we think that what is the disorder, but this will be herpes simplex viral. Okay, both HSV1 and 2 are equally capable of causing initial infection. ठीक है, 1 और 2 के पास पोटेंशियल है कि वो इन्फेक्शन कर सकते हैं. Now in oral cavity, 1 is more involved. In genital, 2 is more involved. Okay, this is the epidemiology or pattern of this herpes virus. Now, 1 infections, HSV1, they are common during childhood and adolescence. Okay, now HSV1, when does it happen? In the age, so during 12 to 19 years, they are most commonly having its features. Then above 70, there are chances that 90% patients will be affected. Whereas in case of herpes simplex virus 2, very
rare. Only 21% will be prevalence of this HSV2. Okay. Now HSV2, when does it increase? So as I mentioned that predisposing factors, you can write all the predisposing factors. Education, poverty, कोकेन यूज, सेक्स पार्टनर्स ज्यादा है इसलिए, माल न्यूट्रिशन लिख सकते हो, एड्स लिख सकते हो, फिर कैंसर लिख सकते हो, लॉन्ग डेबिलिटेटिंग डिसीज लिख सकते हो, बहुत सारे डिसीज लिख सकते हो। ठीक है। नाउ एपिडेमियोलॉजी इन केस ऑफ नियोनेटल हर्पेस, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 और 2 की जरूरत है करने की। ठीक है। नाउ पैथोजेनेसिस, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस, कैसे वो डिसीज होता है, कैसे वो एंट्री लेता है। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशनड यू दैट patient should be having lack of immunity. Okay, then only this virus will be affecting the individual. Okay, first of all there will be replication in the skin and mucous membrane. Okay, then in the neural tissue. Okay, so they are telling that first it will happen in the skin as well as mucous membrane, and they will replicate in the nervous tissue. Now, viral infection, how does it start or begin? They begins at a cutaneous portal of entry in the oral cavity. ओरल कैविटी में एक जगह पर वो एंट्री करने का मौका मिलता है तो वहां से एंट्री कर लेते हैं। ठीक है। अदर साइड्स भी है जहां से वो एंट्री करते हैं, म्यूकोजा पर है, जेनेटल म्यूकोजा, ऑक्यूलर कंजक्टिवा और ब्रेक्स इन द केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है। तो पहले ये लोग ऐसा बता रहे हैं, वो क्या करेंगे, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगे ज्यादा, और फिर नर्वस टिश्यू को, फिर वो एंट्री लेंगे बहुत सारे म्यूकोजा से, ओरल कैविटी, जेनेटल म्यूकोजा, ऑक्यूलर कंजक्टिवा, उससे फिर कैसे वो रेप्लिकेट होगा। तो वायरस रेप्लिकेट्स लोकली रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेल एंड समटाइम्स प्रोड्यूसेस क्लिनिकली एपेरेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है। तो वायरस क्या करेगा, एक बार एंट्री ले लेगा और कभी कभार खुद मर जाता है, लेकिन बॉडी को ऐसा लगता है कि ये वायरस जिंदा है तो वो एक्टिविटी दिखाना चालू कर देता है, और उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में आपको वेसिकल्स मिलेंगे और अल्सर्स मिलेंगे स्किन के ऊपर। ठीक है। वेसिकल्स और अल्सर्स आर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय द बॉडी अगेंस्ट द हर्पेस एंटीजन। ठीक है। तो ये थोड़ा इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़े आपके पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है। कभी कभार वायरस नर्व एंडिंग्स होती है वहां से भी एंट्री लेते हैं और नर्वस टिश्यू में भी अंदर चले जाते हैं। आपको खाली शॉर्ट में लिखना है कि द नर्व एंडिंग एंट्री लेते हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि सब सेंसरी न्यूरॉन्स होता है ना, उसमें भी वो लोग अपना रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। मोस्ट HSV infections are subclinical. सबक्लिनिकल का मतलब क्या है कि वो ज्यादा सिम्टम्स दिखाएंगे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है क्या डिसऑर्डर। ठीक है। इन सम इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स इंफेक्शन इज लेटेंट। उसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये न्यूरॉन है, वायरस यहाँ पे आया और बैठ गया इसके अंदर, लेकिन पेशेंट की इम्यूनिटी ज्यादा है तो कोई सिम्टम नहीं आएगा। जैसे ही इम्यूनिटी लो होगी वैसे वायरस एक्टिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं लेटेंट। ठीक है। फिर वायरस रेप्लिकेट होता है, नर्व फाइबर्स में ट्रांसफर होता है, और रिकरेंट इन्फेक्शन जो होता है वो कभी कभार सिम्टोमेटिक भी होता है। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, वायरस जब रेप्लिकेट होता है तब वहां से वायरस थोड़े टूट भी जाते हैं और वो कभी कभार ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, ट्रांसमिटेड टू ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जिसकी इम्यूनिटी कम होगी
उस पे वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? आप डेफिनेशन लिख सकते हो, फिर इटियोलॉजी लिख सकते हो, फिर पैथोजेनेसिस लिख सकते हो, और एपिडेमियोलॉजी लिख सकते हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हमारा 5वां पॉइंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यहां तक कोई आपको डाउट हो तो बताइए, डाउट हो तो हमको बताइए, वरना हम चालू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस ऐसे रटने वाली चीज नहीं है, आप अपने हिसाब से भी पॉइंट लिख सकते हो। तो क्या आया, पहले तो ये जो लीजन है ना उसमें वेसिकल्स और अल्सर्स होंगे। ठीक है, कोई भी डिसीज होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर वेसिकल्स कैसे होंगे? 2 to 4 मिलीमीटर वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, और वहां पे नीचे रेड बेस होगा, कोई स्किन होगी, उसके ऊपर ये एरिथमेटस बेस होगा नीचे, और ऊपर वेसिकल जैसा होगा। ठीक है, बुला मतलब थोड़ा ज्यादा होगा, वेसिकल की साइज थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, फिर वो वेसिकल रप्चर हो जाएंगे और अल्सर बन जाएगा। ठीक है, कभी कभार हमको तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और हमको ऐसा लगता है कि स्किन थोड़ी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा, पहले तो वो वेसिकल्स वाला लीजन है, तो स्किन पर आपको वेसिकल देखने को मिलेगी, अल्सर्स देखने को मिलेंगे, वेसिकल्स की साइज स्मॉल होगी 2 to 4 मिलीमीटर, सराउंडेड होंगे एरिथमेटस बेस से, वेसिकल्स फिर अल्सर में टर्न हो जाएंगे, और वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे और स्मॉल स्किन फिशर की तरह हमको लगेंगे। अब एक्यूट जब होता है पेशेंट का इन्फेक्शन, तब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ठीक है, तो वो जनरली बच्चों को होता है 6 months to 5 years वाले एज। ठीक है, तो हमारा ये एज ग्रुप हो गया पहला सेंटेंस। फिर पेन, पेन आपको लिखना है यहाँ पे, पेन के बारे में समझाना है। सडन ऑनसेट होता है, फिर माउथ में पेन होगा, ड्रूलिंग होगा सलाइवा का, पेशेंट खाना मना कर देगा, और फीवर हाई ग्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 42-40 डिग्री सेल्सियस, ये हाई ग्रेड फीवर है। ठीक है, फिर गम्स, पहला पे पॉइंट है एज का, फिर पेन का, फिर गम्स। तो गम्स पर क्या होगा, यहाँ तो लिखा ही है, लेकिन आपको पता है कि ये वेसिकल्स वाला रीजन है, तो आपको वेसिकल्स लगा देना है गम पर, फिर अल्सर बना देना है उसको, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा ही होगा, गम्स का स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, गम्स स्वॉलन हो जाएंगे, फिर वेसिकल्स बन जाएंगे, फिर कभी कभार वो अल्सर बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। फिर टॉन्सिलर एक्सिलेट्स भी पाया जाएगा। ठीक है, फिर जो भी लिम्फ नोड है हमारे मुंह के, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और सर्वाइकल, तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर फाउल स्मेलिंग हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं किया तो वो 7 से 14 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लिम्फेडेनोपैथी है वो परसिस्ट रह जाएगी। तो ये स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही आना चाहिए। मैं थोड़ी आपको फिर से पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो आएगा सेंटेंस में एज। ठीक है, ये जो है ना वो एज का फैक्टर है, तो खाली आपको यही लिखना है। ठीक है, फिर पेन,
आप पेन लिखोगे ना तो कहाँ से चालू करना है, यहाँ से सडन ऑनसेट, फिर ड्रूलिंग होगा, रेफ्यूजल टू ईट और ड्रिंक, फीवर होगा। ठीक है, फिर आएगा गम्स। गम्स क्या होगा, स्वॉलन होगा, उसके ऊपर वेसिकल्स होगा और बाद में अल्सर हो जाएगा। तो इतना शॉर्ट करके आपको लिखना है। फिर टॉन्सिलर एक्सीडेंट्स यही लिखना है। फिर लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी, ये करके आपको 3 चीज लिख देना है। फिर फाउल स्मेलिंग यही लिखना है और ये लिखना है कि कब तक वो हील हो जाएगा। 7 to 14 days में वो हील हो जाएगा। तो देखिए पेशेंट जब आता है आपके पास तो ऐसे हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट पैचेस होगा और नीचे रेड एरिथमेटस बेस होगा। Now in older children, okay, they might manifest as pharyngitis and tonsillitis, not gingival उसमें जिंजाइवल में प्रॉब्लम नहीं होगा, फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में दिक्कत होगा। ठीक है, कभी कभार वो स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस जो फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है उससे अलग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिम्टम थोड़े फीवर वाले हो जाते हैं, मलेरिया वाले हो जाते हैं, हेडेक होता है, सॉर थ्रोट होता है और वाइट प्लग हो जाता है टॉन्सिल्स पर। ठीक है, तो वो डिस्टिंग्विश करना डिफरेंस होता है। अब कोर्स ऑफ इलनेस क्या है, तो वो टिपिकली लॉन्गर होता है स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस से। स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस आई और आपने एंटीबायोटिक दे दी ऑगमेंटिन या कोई सीफा ड्रग्स या, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हर्पिस लेबियलिस उसका मीनिंग क्या हुआ, लिप पर होगा ही। ठीक है, तो क्या क्या होगा, फीवर ब्लिस्टर्स होंगे, कोल्ड सोर्स होंगे। ठीक है, फीवर आ जाएगा और पेशेंट को ठंडी लगेगी। फिर आपको यहाँ लिखना है कि वेसिकल्स हो जाएंगे, वेसिकल्स रप्चर होकर अल्सर हो जाएगा, ये पॉइंट ऐड कर देना है। फिर साइट नोज चिन म्यूकोजा, और क्या क्या होगा, तो बर्निंग टिंगलिंग इचिंग पेन होगा। ठीक है, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ हर्पिस लीजन, और 6 या 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हर्पिस लेबियलिस कभी कभार शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आपके हिसाब से वो वायरस का क्वेश्चन जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये है हर्पिस लेबियलिस। Now, apart from oral cavity, they will discuss cutaneous infection. तो सेम चीज आपको लिख देनी है, पहले वेसिकल्स होंगे, फिर अल्सर हो जाएगा, पेन होगा, ये होगा, तो सेम थिंग आपको उसमें लिख देनी है। ठीक है, सीएनएस में थोड़ा आपको लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा सीएनएस का लिखना नहीं है। अब इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, तो वो मरने के हिसाब से ही पड़ा रहेगा, सीवियर होगा, लाइफ थ्रेटनिंग होगा। ठीक है, उसमें बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन होगी, एड्स जैसा, मालनूरिश्ड जैसा, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं ना ये वाला लिस्ट। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मैंने बताया ना आपको कौन कौन से, कैंसर वाले पेशेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले हैं, इम्यूनो सप्रेसिव है, वो सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है, इसमें सिवियरिटी ज्यादा होगी।
ठीक है, तो आप ये भी आप बता सकते हो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में ज्यादा दिक्कत होगी। अब डायग्नोसिस कैसे करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, पहले तो डेफिनेशन की, फिर इटियोलॉजी की, फिर पैथोलॉजी की, ठीक है, फिर आपको क्लिनिकल फीचर्स आए, ठीक है ना। अभी आपको डायग्नोसिस आएगा। तो डायग्नोसिस कैसे करना है, तो आपने जो कोरोना में किया था ना आरटी-पीसीआर टेस्ट, ऐसे सब टेस्ट आती है, वो आपको लिख देना है कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से होता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी फाइंडिंग्स करेंगे, एचएसवी इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करना है, खाली नाम ही आपको लिखना है, ठीक है, खाली नाम, आपको ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं है। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या आएगी इसमें, तो ऑब्वियसली वायरस है तो एंटीवायरल ड्रग्स आएगा, एसाइक्लोविर, वालासाइक्लोविर और फैमसाइक्लोविर, ठीक है। जो एसाइक्लोविर देते हैं ना, वो अच्छी तरह से काम करता है, बॉडी में जितना भी देता है तो वो बॉडी में ठीक से काम करता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो वो उसके लिए ज्यादा डोज हमको चाहिए, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जो है उसकी खराब है, वो जो हम लेते हैं ना एसाइक्लोविर, तो क्या होगा, पेशेंट को निकल जाएगा वो, ठीक है, एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, इसलिए उसको डोज ज्यादा देना है। उसको डोज अगर नहीं ज्यादा देना है तो बाकी दवाई दे दो, वेलासाइक्लोविर और फेमसाइक्लोविर, ठीक है। और ए साइक्लोविर है ना, वो हमको आईवी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ड्रग्स देनी है। फिर बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो इसमें, क्या लिख सकते हो, ओरल हाइजीन केयर, प्रॉपर टूथब्रशिंग टेक्निक, प्रॉपर काउंसलिंग, ठीक है। फिर पेशेंट को मोटिवेट करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, तो ये सब आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, यानी दिया, लेकिन फिर भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब एक्यूट म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी, तो आपको ओरल एसाइक्लोविर देना है टैबलेट, ठीक है। फिर क्या करना है, अगर आपने वो डिसीज हुआ ये इन्फेक्शन और आपने 72 आवर में ही दे दिया, तो वो सिविरिटी भी कम करेगा और ड्यूरेशन भी कम करेगा, ठीक है। जो पेन होगा खाने के टाइम, तो आप पेशेंट को ज्यादा फ्लूइड्स दीजिए, ठीक है, फ्लूइड दीजिए। फॉर herpes labialis आप टॉपिकल एंटीवायरल थेरेपी भी दे सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंस, अगर दूसरी बार होता है तो तीनों ड्रग ही आएगा, वेलासाइक्लोविर, एसाइक्लोविर और फैमसाइक्लोविर, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट था, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, herpes सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में पढ़ा। पहली बात ये है कि वो क्या है, तो वायरल डिसीज है, ठीक है। आप क्या क्वेश्चन लिखोगे उसमें, आंसर इंडेक्स में, तो पहले तो डेफिनेशन, ठीक है, कि ये वायरस ऑर्गेनिजम्स है और डिसऑर्डर जो करते हैं ओरल कैविटी और म्यूकोक्यूटेनियस स्किन और कैविटी में, उसको जो फीचर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। फिर टाइप्स 1 और 2,
ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 और 2 के बीच में ऐसा टेबल बना दीजिए कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है इटियोलॉजी। तो आपको तो पहले वायरस ही लिखना है, फिर जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है वो सारे के सारे लिख देने हैं, इन्यूमरेट कर देना है। HIV, ऑर्गन डोनर, फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, वो सब आपको लिख देने हैं। फिर आता है क्लिनिकल फीचर। तो ये वेजिकल वाला लीजन है तो वेजिकल्स होंगे, फिर अल्सर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसका एरिथमेटस बेस होगा। ठीक है, ऐसे आपको क्लिनिकल फीचर्स लिखना है। फिर अगर अल्सर हो गए मुंह में तो क्या क्या दिक्कत होगी, तो खाने में दिक्कत होगी, ड्रिंक पानी पीने में दिक्कत होगी, फिर आपको लगेगा कि पेशेंट को टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर फाउल स्मेलिंग है, वो सब आप फीचर्स लिख सकते हो। फिर हिस्टोपैथोलॉजी, डायग्राम ड्रॉ कर देना है उसका। ठीक है, फिर क्या होता है उसका डायग्नोसिस, तो RT-PCR करके आपको डायग्नोसिस करना है। फिर बहुत सारे टेस्ट है, ऐसे भी आप टेस्ट कर सकते हो। फिर आता है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो पेशेंट को मोटिवेट करना है, काउंसलिंग करना है। उसको खाने में दिक्कत आ रही है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, फ्लूइड्स देना है, उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ाना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के बारे में जो मैं बताया ना वो थोड़ा ऐसे ही जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है ना, आपको आपकी एग्जाम में ऐसे ही नोट लिखना है। ठीक है, कि मैं डेफिनेशन में ये लिखूंगी, टाइप्स में ये आएगा, इटियोलॉजी में ये आएगा, क्लिनिकल फीचर में ये आएगा, फिर हिस्टोपैथ में ये आएगा, डायग्नोसिस में ये आएगा, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जितनी भी ड्रग है, एसाइक्लोविर, फिर फैमसाइक्लोविर, ठीक है, वो सब आपको डोज के साथ याद रख लेना है। तो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही आपको 5 मार्क या 7 मार्क में लिखना है, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर इतना काफी है। आप शांति से अपने नोट्स बनाइए। आपको कोई दिक्कत हो तो हमको आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारी वेबसाइट है, आप वीडियो के नीचे लिंक में देख सकते हो, AI मेडिकल डेंटल एकेडमी। उसकी वेबसाइट है www.medicaldentalacademy.com। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वहाँ पे सारी डेंटल की जो एग्जाम्स है वहाँ भी फ्री में मिल जाएगी आपको। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। If you have not pressed the bell icon, please press the bell icon so that you can receive the upcoming notifications. Have a nice time. Bye bye.